Today we are here to start the topic, and I think we are aware of that. My video is not properly, I'm not visible. Am I? Good evening, everyone. There was some technical glitch, that's why we were not able to start the program. The network was so slow from WebEx. That is the problem. We are here to discuss classroom management. What is classroom management? I think everyone is aware of that. According to me, every teacher is the principal of a class, and in a big school or a small school as well. Good evening, everyone. Yeah. Please. Good evening, everyone. Please. Okay, everyone. Good evening, and please. There is no need to write down your school code, etc. But I am starting the session. Okay, no issue. So, what is classroom management? Everyone has done that from such a long time, I think. In a classroom management, every time, everywhere, I believe that a small school is running in that particular classroom every time. And every teacher, the class teacher, in fact, is the principal of his or her own class, and teachers are supportive of colleagues. So classroom management is a huge topic that covers entire thing in the terms of a school. Nowadays, being as a teacher, we are facing so much problem. How to manage class? The class of kiddos, the classes of senior wings, the classes of upper primary. Somehow we are facing misbehavior of the student as well. But exactly, there is not a shortcut or exact solution. It depends upon you, how you can handle it. So good evening again, everyone. I'm going to start finally with the sharing screen. Before going to classroom management, it is better for us to understand the meaning of management. What do you mean by management? Somehow management is defined in +2. Getting things done by others is called management. In fact, management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in a group efficiently accomplish their selected aims, you can say, or
had defined it like that. My voice is there, I think. Management is also defined like it is a process. It is a process of getting things. It is a process of getting things done by others in effective and efficient manner. So what do you mean by classroom management? Somehow you might have noticed that a class has a pin drop silence. If there is a pin drop silence, whether the students are participating in academics or not, this is the much more important thing. So being as a teacher, we should try to optimize the output, and output is providing knowledge to the student. Now, what do you mean by classroom management? I have spoken the meaning of management. Management in simple sense हम ये कहेंगे कि आप ऐसा क्या करें उस क्लास में आउटपुट नॉलेज बच्चों में इम्पार्ट प्रॉपर्ली हो सके। यही मैनेजमेंट है आपका क्लासरूम में, कि हम ऐसा क्या करें क्लास में बीइंग एज अ टीचर कि हमारे बच्चे विद इन दैट 40 मिनट्स हमसे कुछ सीख लें और उनका एकेडमिक सोशल इमोशनल लर्निंग हो पाए। ये पर्पस है क्लासरूम मैनेजमेंट। सो व्हाट इज CLM? I have used a short form abbreviation for CLM, that is classroom management. Classroom management can be defined as the action taken by teachers to create an environment. Which kind of environment? That can support, that can facilitate both academic and social emotional learning of the students. हम ऐसे कौन सी डिजाइन में लेकर के बच्चों को जाएं, उनका एकेडमिक गोल भी फुलफिल हो जाए, इमोशनल लर्निंग भी उनके पास हो, और ये सारा का सारा टीचर पे डिपेंड करता है। आफ्टर ऑल टीचर is the boss of the class. It may be a factor of discipline. क्या लगता है ऐसा कि सिर्फ डिसिप्लिन से ही हम क्लास मैनेजमेंट कर सकते हैं? मैंने अभी भी बोला, हो सकता है कि कुछ लोगों के क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो और वहां ये देखना है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं या सिर्फ बैठे हैं हेड डाउन करके रखे हैं, वो क्लास रूम मैनेजमेंट होगा ही नहीं। सो डिसिप्लिन तो है, अब उस डिसिप्लिन में लर्निंग है या नहीं है ये भी देखना जरूरी होगा। देखना होगा थोड़ा सा, आजकल में कभी कभी आपने खान सर का वीडियो देखा होगा, उनके बच्चे बहुत सारे होते हैं, किस ऑब्जेक्टिव से आते हैं? वो ऑब्जेक्टिव उनकी लर्निंग होती है, सीखने के लिए आते हैं। खान सर बहुत सारा ऐसा बात बोलते हैं, बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे कुछ सीख पाए। तो सिर्फ एक फैक्टर डिसिप्लिन से क्या हम उन्हें प्रॉपर लर्निंग दे पाएंगे? वो जो नॉलेज आपके और हमारे पास है, क्या हम वो इम्पार्ट बच्चों को कर पाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लासरूम मैनेजमेंट है, क्लास में आप जा रहे हो, इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर यू बीइंग एज अ टीचर, एडुकेटर, हमारा प्रॉपर प्रिपरेशन के संग जाए।
बगैर प्रिपरेशन के अगर क्लास में आप जाते हो, कहीं ना कहीं वो बच्चों को फील होता है, बच्चा जो आपके बच्चे हैं ना किसी भी एज ग्रुप के हों, उनको बहुत समझ में आता है क्लास के बारे में, तो उनको जानकारी बहुत होती है, वो तुरंत भाप लेंगे, तुरंत पता चलेगा यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट। तो ये भी देखना होगा कि जब हम क्लास में जाते हैं अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो। क्लासरूम मैनेजमेंट इज ऑल्सो मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। किस तरीके से बच्चों को हम कुछ उनके भविष्य के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, उनकी प्लानिंग के बारे में ऐसा कुछ करें, क्या बोले, क्या मोटिवेट करें, ताकि बच्चा आपका पढ़ने लगे, ध्यान दे। मोटिवेशन दो तीन तरीके से हम कह सकते हैं। निगेटिव मोटिवेशन भी होता है, जब शाउट करते हैं, स्कॉल करते हैं, लेकिन अब सीबीएसई इन चीजों के लिए मना कर रहा है। आप टीचर्स मैनुअल में प्रॉपर्ली देख सकते हैं बातों को, कि बच्चों को ऐसा सिचुएशन में ना डालें कि उनका मेंटल स्टेबिलिटी में थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो। तो मोटिवेशन कैसे, मैंने अभी भी बोला, निगेटिव सरकाज़्म क्या करना, बच्चों पे हंसना, क्या ये सब सही है? ये सब सही नहीं माना जाएगा आपका उसके क्लास में। सो मोटिवेट करने के लिए सिंपल सा पीयर कंपैरिजन कीजिए आप बच्चों को। अगर बच्चा मोटिवेट किनको करेंगे आप, जो बिलो एवरेज है, एवरेज बच्चे हैं, क्योंकि जो अच्छे होते हैं ना, जो टॉपर्स होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनके अंदर भगवान ऊपर वाले ने ऐसा इनबिल्ड करके दिया है कि उनको ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उनको मोटिवेट करे टॉपर्स बनाने के लिए, ये हो सकता है। लेकिन हमें मोटिवेट उन बच्चों को ज्यादा करना चाहिए जो बिलो एवरेज है या एवरेज है। मोटिवेट करने के लिए आप क्लासरूम ऐसा डिजाइन कर सकते हैं, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन क्लास का बच्चों को बिठा सकते हैं कि एक एवरेज है तो बिलो एवरेज है, तो इस तरीके से भी मोटिवेट कर सकते हैं। ब्रावो, आप चॉकलेट दे करके मोटिवेट कर सकते हैं, चलो भाई तुम आज 5 क्वेश्चन बनाओ, मैं तुम्हें एक कैडबरी दूंगा, ऐसा भी कर सकते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट ये भी है कि बच्चे जो आपके हैं उस क्लास में कैसे सेफ हैं, अच्छे से हैं। सेफ का मतलब ये नहीं है कि वो कहीं जंगल में कोई जानवर आकर के बाहर अटैक करेगा। क्लास में भी वो सेफ फील करते हैं। अगर वो सेफ फील करेंगे तभी कंफर्टेबल फील करेंगे और तभी वो लर्निंग हो पाएगी, नहीं तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि बच्चे आपके सीख पाए। इट इज ऑल्सो अबाउट just to let them think with the help of the teacher, to be imaginative and daily lesson। ये भी हमें देखना है कि बच्चे कैसे कैसे अच्छे से सीख पाए, क्या कर पाए, किस तरीके से सीखें, ये भी देखेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट इज नॉट, व्हाट इज नॉट क्रिएशन ऑफ एन ऑर्डरली क्लासरूम। टीचर गए, बच्चे बैठे हुए हैं, गए होमवर्क निकाले, टीचर बोर्ड पे काम करना शुरू कर दिया, क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया, ऐसा भी क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं है। और आप जिस तरीके से चाहते हैं कि भाई आपने डांट लगाई, सुनो मुझे ये पसंद नहीं है, ऐसा ऐसा क्लासरूम मैनेजमेंट आज के लिए नहीं चलता है। दुनिया बदल रहा है, बच्चे बदल रहे हैं, थॉट बदल रहा है, उनका लर्निंग प्रोसेस बदल रहा है। तो सिंपल सेंस में आप इस तरीके से बना करके क्लास को नहीं निकाल सकते। पहले क्लास में जब हम जाएं तो सबसे पहले तो हम ये देखें, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारा ये रोल होना चाहिए कि बच्चे जो क्लास में प्रेजेंट हैं, क्या वो मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट हैं भी या नहीं। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट देम। कनेक्शन का मतलब मेरा यहाँ पे सिंपल ये है कि आप उनके मेंटल स्टेबिलिटी को देखें, आप कोशिश करें कि वो कंसंट्रेट हो जाएं, वो अपने आप को फिजिकली और मेंटली क्लास में समझें, तभी आप टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं और तब बच्चों को समझ में आएगा। आमतौर पे ये देखा गया है, नॉर्मली इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट बीइंग एज अ टीचर वी जस्ट वांट टू फिनिश द टॉपिक, फिनिश द सिलेबस, देयर इज सो मेनी प्रेशर्स। तो प्रेशर है तो सिलेबस हमने खत्म कर दिया। अब हमने ये सोचा भी नहीं कि क्या वो बच्चे समझ पा भी रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो अगर रियल सेंस में देखा जाए
बच्चों को समझाने की बात है, देखने की बात है, तो सबसे पहले उनको देखिए कि उनकी कनेक्टिविटी क्लास में है या नहीं। मैं ये मानता हूं क्लासरूम मैनेजमेंट सबके लिए अलग अलग है। आपके पास टीचिंग स्टाइल अलग हो, आई एम अ टीचर आल्सो एज पीजीटी, तो मेरा टीचिंग मेथड अलग होगा, पर्सनालिटी एटीट्यूड्स अलग होगा। स्टूडेंट पॉपुलेशन, बच्चे अगर बहुत ज्यादा हैं तो वहां पे टीचिंग मेथड चेंज होगा। वहां पे नॉर्मली टीचर को ये देखा गया है कि वो बस ये चाहते हैं कि किसी तरीके से क्लास से आवाजें ना हो, पढ़ाई तो बहुत दूर हो जाती है। अब उसमें हम ऐसा क्या करें, कौन सा ऐसा काम करें कि सारे बच्चों का ध्यान आपकी तरफ आए, क्या ऐसा करना है? बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इसके। किसी को आप 2 मिनट के लिए एक पेशेंट पूछोगे, नॉर्मली बच्चे शांत हो जाते हैं कि अच्छा सर स्टार्टेड टीचिंग। किसी को आपने कुछ रिवार्ड बोला, अप्रिशिएट करा, उससे भी होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट, क्लास स्ट्रेंथ, आपका टीचिंग मेथड, क्लास मैनेजमेंट वेरी करेगा, बदलेगा, चेंज होगा। ये देखा गया है कि जितने भी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो हर एक टीचर के लिए इफेक्टिव नहीं होते हैं। उनका अलग तरीका होता है, या वो सारा चीज लगा लिए देते हैं, टीचिंग स्टाइल वगैरह सब लगा लेते हैं, लेकिन क्लास कंट्रोल नहीं होता। तो हमें हर वो चीज ढूंढना है, उस बात को देखना है कि आखिर क्लास कंट्रोल किस तरीके से बेहतर हो सकता है। हम क्या ऐसा करके क्लास को अच्छा कर सकते हैं ताकि बच्चे सीख पाए। सीखने के लिए हम क्या करें उनमें, क्या कोई एक्टिविटी प्लान कर ले, इंस्टेंट कोई एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर अब कोई अकाउंट्स का क्लास ही है, उसमें 500 का नोट निकाल करके 2 पार्टी बना करके वही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज है, अब किसी को डबी बना करके किसी को कुछ का पेड़ बनाओ, किसी को नदी बना दो, वो ऐसा भी हो सकता है जूनियर ग्रेड लेवल पे। कोशिश करें कि कैरेक्टर हम उसी समय इंस्टेंट बच्चों से ही बच्चों को बता करके निकालें। उनका इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो सीखेंगे और सीखने की इच्छा होगी, और जब ये होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव जो है और हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल होगा। क्योंकि टीचर ही एक सिंगल कम्युनिटी है और किसी में ऐसा पावर नहीं है। हम टीचर ही चाहें तो जनरेशन को बदल सकते हैं, नहीं तो और कहीं किसी से होने वाला ये काम नहीं है। तो वी शुड इनोवेटिव, कुछ ना कुछ तो नया करना होगा। आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं। जब बात क्लासरूम मैनेजमेंट की है तो इफेक्टिवनेस की बात होगी ही होगी। किस तरीके से क्लास बहुत इफेक्टिव हो, तो एक ऐसा हम लोग सस्टेनेबल ऑर्डरली इन्वायरमेंट बनाए क्लास में कि क्लासरूम में मैनेज भी हो सके, बच्चा कुछ सीख भी सके। अब जब हम जाएंगे तो कहीं अब आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बोल दूं कि आपके पास प्लान है कि आप पर्टिकुलर डेज का कोई प्लान है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए कोई प्लानिंग करा था आपने, अगर एक्टिविटीज कराने तो कोई एक्टिविटीज के बारे में आपने सोचा था, उस एक्टिविटीज से रिलेटेड क्या क्या एड आपने सोचा था, क्या वो एड अवेलेबल था या नहीं था, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी, समझनी पड़ेंगी। आजकल के जनरेशन में ये देखा गया है बहुत सारी चीजें, स्टूडेंट नेट देख करके बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो वो वाला आज 20 इयर्स के पहले का एजुकेशन और आज के एजुकेशन में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। सीबीएसई के रूल्स के अकॉर्डिंग भी बहुत सारी नियम आए हैं, रूल्स आए हैं।
अब हमें ये देखना है क्लासरूम में कि ऐसा क्या निगेटिव थॉट, निगेटिव बिहेवियर बच्चों का है जो कहीं ना कहीं जो उनका लर्निंग है वो सही तरीके से नहीं करवा पाता है, सीख नहीं पाते हैं। आप लोग बहुत सारा नियम ऐसा लगाते होंगे कि क्लास आपका इफेक्टिव रहे। Effectiveness does not mean only that you have a few list of the things. प्लानिंग है आपकी, सारा apparatus है, बच्चे भी शांत हैं, आप पढ़ा भी रहे हो। इफेक्टिव तभी हो पाएगा जब हम सिखा पाएंगे उसको कुछ, उन बच्चों को हम कुछ सिखा पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी। तो जब बात इफेक्टिवनेस की आएगी तो ये देखना होगा हमें। अगर हम और भी देखें, प्रोवाइड इकोनॉमी फॉर टाइम एज वेल एज एनर्जी। अब भाई ये क्या हो गया, ये भी देखना होगा हमें कि टाइम जो मिला है उसी टाइम फ्रेम में हम कर ले। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा सा डिले आए क्लास में और दूसरे टीचर का टाइम आपने ले लिया, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्लॉट जो होता है वो प्रॉपर लिमिटेड होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, फिर दूसरे टीचर के का टाइम जाएगा, वो सही नहीं हो पाएगा। मैंने पहले ही बोला इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट और क्लासरूम मैनेजमेंट, तो ऑब्वियसली क्लासरूम मैनेजमेंट है तो इफेक्टिवनेस होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, कैसे हम कर सकते हैं इन चीजों को। सबसे पहले हम विलफुली ये एक्सेप्ट करें कि हमें कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास को कंट्रोल भी करना। वैसा ना हो कि कोई सीनियर आ जाए या प्रिंसिपल उधर से आ जाए तो बच्चा सुनता नहीं है, हम क्या करें। ये ऐसा वाला सॉल्यूशन नहीं चलता है आज के टाइम में। तो ये हमको समझाना होगा, कुछ ऐसा करना होगा, कुछ न्यू इनोवेशन लेकर के क्लासरूम में जाना चाहिए। पर डे कुछ ऐसा जाना चाहिए कि बच्चे सीखना चाहें, सीखने की कोशिश करें। तो क्लासरूम कंट्रोल करना ये सिर्फ और सिर्फ बिकॉज टीचर वहां पे है तो टीचर की है। जब बात इफेक्टिवनेस की होगी, इफेक्टिव क्लासरूम की होगी, तो हमें जो भी सॉल्यूशन है वो देखना है लॉन्ग टर्म में जाकर के आने वाले टाइम में क्या असर होगा जो कि लॉन्ग रन में रहे। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन इज ऑलवेज नॉट एक्सेप्टेबल इन मेनी ऑफ द केसेस। अब हमें आगे ये भी देखना होगा कि कोई प्रॉपर सिम्टम है बिहेवियर में जिसके कारण लर्निंग नहीं हो पा रही है। ये भी हो सकता है कि बच्चे को कहीं ना कहीं घर से घरेलू कोई प्रॉब्लम हो, बच्चा कोई ट्रॉमा से गुजर रहा हो, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर रहा हो, बच्चा उस एज ग्रुप से गुजर रहा हो कि उसमें बहुत तरह के चेंजेस आ रहे हो। एडोलेसेंट एडुकेशन बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है उसके लिए। तो हमें इन सब बातों को देखना होगा। सिर्फ चिल्ला करके, आवाज करके निकल जाना ये सॉल्यूशन नहीं है। इसका कोई उपाय परमानेंट हमें देखना चाहिए। जब बात मैनेजमेंट की आती है, मैंने आपको कहा मैनेजमेंट वो चीज है जो प्रॉपर आउटपुट दे विद द यूजिंग रिसोर्स दैट इज अवेलेबल, उसको हम लोग मैनेजमेंट कहेंगे। फिर डिसिप्लिन क्या है? तो एक्चुअली डिसिप्लिन वो प्रैक्टिस है
जस्ट आप बच्चों को, टीचर्स को आप ये टीच कर रहे हो, बता रहे हो कि रूल को मानना, कोड ऑफ बिहेवियर जो है वो सही करना इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। लेकिन जब बात मैनेजमेंट की होगी तो हमें ये देखना होगा कि क्लासरूम में जो लर्निंग है वो बेहतर हो, वो अच्छा हो। अब डिसिप्लिन को बनाने के लिए, रूल बनाने के लिए आप फ्री हैं, आप बहुत तरह का रूल बना सकते हैं, क्लासरूम का भी आप रूल बना सकते हैं कब आना है। क्योंकि रूल को आप सीधे रूल ना बना करके प्रोसीड्योर में रखें कि डे वाइज, अब क्लासरूम का बात आप कर रहे हैं तो डे वाइज ये देखना है कि बच्चे जो हैं वो रोटेशन में बैठे, क्लास का इन्वायरमेंट, बोर्ड आप चेंज करवा सकते हैं, उस काम को ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए कि बच्चा आकर के वहां पे कंफर्टेबल फील करे। और जब वो कंफर्टेबल फील करने लगे तो आपका काम जो है वो लॉन्ग रन के लिए हो जाएगा, शॉर्ट रन का काम वो नहीं होगा। वो लंबे समय तक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होगा, अच्छा होगा। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो क्लासरूम में असर करती हैं? सबसे पहले इन्वायरमेंट। तो जब बात इन्वायरमेंट की होती है, उस इन्वायरमेंट को जाने से पहले बीइंग एज अ टीचर हमें भी वेल ड्रेस होकर के जाना चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज के संग जाना चाहिए, प्रॉपर टीचिंग मेथड्स के संग जाना चाहिए। जब हम क्लास में जा रहे हैं तो ये सोच के जाएं कि आई विल हैव टू मैनेज द क्लास एंड क्लास आउटपुट के संग आना है मुझे। ये इन्वायरमेंट में हमें देखना होगा। कुछ बच्चों का बिहेवियर कैसा है या उनका नीड क्या है ये भी समझना होगा हमें, बीइंग एज अ टीचर। बच्चों को मोटिवेट करें, फिर भी हम we should able to know that how we can control the behavior। अभी आजकल का सिंपल हो गया है कि स्टूडेंट बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ करते नहीं, बस पेरेंट को कॉल कर देंगे। ये एक सॉल्यूशन है लेकिन यही सॉल्यूशन नहीं है। हमें ये देखना चाहिए कि बच्चों में वो बिहेवियर क्यों आया, किस कारण से आया। अगर ये हम पता कर लें कि चेंजेस क्यों आ रहा है तो सर्टेनली उसका सॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अब आप अपने बच्चों से कैसा बिहेव करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना जरूरी है। सो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अफेक्टिंग क्लासरूम मैनेजमेंट। अब यहाँ ये बिल्कुल सही है, हम लोग बोलते भी हैं फ्रेंडली मैनर में पढ़ाई होनी चाहिए। फ्रेंडली मैनर डज नॉट मीन दैट टीचर इज एंड स्टूडेंट्स आर फ्रेंड, ये मतलब नहीं है। फ्रेंडली मैनर कि उसको अच्छे से बताना, डांटना नहीं। बिकॉज सम एक मैं भी अभी मैं 11th को ही बता रहा था, 11th की क्लासेस थी, नई नई क्लासेस आई थी। एक बच्चा स्टूडेंट जो था, अब मैं थोड़ा सा बताऊं अपने बारे में। और उसको मैंने पूछा कि बाबू तुम्हें डर लगता है क्या? तो कहा सर मैं अब बहुत बहुत बड़े स्कूल में था, पटना का ही था वो। कहा सर वहां पे क्वेश्चन पूछने से टीचर है ना वो पीटते थे, गुस्सा हो जाते थे। तो वो बंदा जब 11th में हमारे यहाँ आता है तो इस मेंटल इस थॉट के संग आता है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा। तो ये मैंने समझा, आप पढ़ा रहे हैं, आपने भी ये एबिलिटी होगी तो बच्चों के अंदर झांकना भी क्या हो रहा है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है। तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही दो चीज है, यही है, ये आपको बता पाएगा, क्लास सही आउटपुट दे पाएगा।
स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप, जो आपके क्लास के बच्चे हैं वो दूसरे बच्चों से कैसा बिहेव करते हैं, किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस बैकग्राउंड से वो आते हैं, जिस तरीके से आएंगे वो वैसा इन्वायरमेंट लेकर के आएंगे। जब बात कंपोनेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट की आती है तो इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप: कंटेंट मैनेजमेंट, कंडक्ट मैनेजमेंट, कोवेनेंट मैनेजमेंट। कंटेंट मैनेजमेंट का है क्या, कि किस तरीके से हम अपने उस कंटेंट को जो क्लास में जरूरी है लेकर के जाएं, क्या करें, कैसे, किस तरीके से करिकुलम को प्लान करें, इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग किस तरीके से हम करें, जो हमारे क्लास का फिजिकल इन्वायरमेंट है उसको कैसे मैनेज करें, टाइम कैसे रखें, टीचिंग स्टाइल। आप ध्यान से देखो, अगर टीचिंग स्टाइल बेटर है, भाई करिकुलम प्लान सबके पास होता है, क्लासेस सबके पास होती है, टाइम भी सबके पास होता है, क्या वो चीज है जो क्लास का आउटपुट बढ़ाता है? कहीं ना कहीं टीचिंग स्टाइल, हमारा और आपका टीचिंग स्टाइल क्या है, किस तरीके से हम बच्चों को किसी चीज को बताने के लिए, नया टॉपिक बताने के लिए, पुराना टॉपिक या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या उपाय डालते हैं ताकि बच्चा सीख पाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात माना जाता है कंटेंट मैनेजमेंट में। जब आप करिकुलर प्लान कर रहे हैं तो आपको ये बताना होगा कि वहां पे ये देखिए कि 40 मिनट्स में आप क्या क्या करवाएंगे। 40 मिनट में सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आपको ये करना चाहिए कि हाँ, सबसे पहले मैं ऐसा 2-3 मिनट कौन सा ऐसा प्लान लेकर चलूं, कौन सा ऐसा चीज करूं ताकि दैट इज कॉल्ड आइस ब्रेकिंग टेक्निक्स, ताकि बच्चा कनेक्ट हो पाए। जब बच्चा कनेक्ट होगा तो पढ़ाई हो पाएगी। फिर फिजिकली ये देखना, फिजिकल इन्वायरमेंट, क्लास में प्रॉपर बैठने की जगह है या नहीं है, जो टाइम दिया गया है उसमें हमारा सिलेबस हो पाता है या नहीं हो पाता है। फिर टीचिंग स्टाइल, कंडक्ट मैनेजमेंट, इसकी क्या बात होगी? इट इज ऑल अबाउट, क्या ये काम आप लोग भी करते हैं? बहुत सारा पॉपअप आ रहा है, मुझे लगता है आप लोग भी ऐसा कुछ करते होंगे क्लास को मैनेज करने के लिए। आप लिस्ट कीजिए कि आप क्लास जब जाते हैं तो कैसे क्लास को मैनेज करते हैं, कैसे क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है क्लास में गए बस बोर्ड से स्टार्ट, क्या हम बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं 2 मिनट के लिए, बच्चों को किसी तरीके से ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ये होता है या नहीं? तो आप ग्रुप में आप टेक्स्ट में डाल सकते हैं कि आपका क्या टीचिंग मेथड है, टीचिंग स्टाइल आपका क्या है, आप पहले जाकर के क्या करते हैं। जब कंडक्ट की बात होगी तो यहाँ पे रूल्स आएगा, प्रोसीड्यूर्स आएगा, और ऐसा हम कह सकते हैं कि जब रूल्स आएगा, बच्चे नॉर्मली रूल्स नहीं बता मानते हैं, उनको आप प्रोसीड्योर में बांट दीजिए, उनको कहीं ना कहीं आप उस सिस्टम में बांट दीजिए, उनको सीधे रूल मत बताइए क्या यही रूल है। जब वो उस सिस्टम के जरिए स्टेप बाय स्टेप कुछ सीखेंगे तो ऑब्वियसली उनको रूल भी पता चल जाएगा। तो सीधे रूल बताने से अच्छा है उसको एक प्रोसीड्योर बनाइए आप। अब क्लास में हम पढ़ा रहे हैं तो हाँ, जो भी बोर्ड पे चीजें हो रही है वो नोट करना है उसको घर में। तो अगर आप रूल बनाओगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ कल बताना, तो ये रूल हो गया, उसी को आप सिस्टम में डालो कि बाबू जो whatever I am teaching right now, you have to note it down, revise and come with a solution tomorrow, come with a problem tomorrow. It can be a procedure. So ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रूल बना के छोड़ देते हैं या उसको प्रोसीड्योर में डालते हैं। अब जो बच्चे इन चीजों को मान जाए, उनके लिए कहीं ना कहीं रिवार्ड होना चाहिए, और जो नहीं माने उनके लिए कुछ ना कुछ तो
ऑब्वियसली हम लेकर के चलेंगे कंसिक्वेंस कि हम फिर क्या करें कि वो बच्चे सीखें, क्योंकि बच्चों में सीखने का बहुत तरह का वार्क आपने सुना होगा, मेथड्स होता है। सिंपल हर एक बच्चा एक तरीके से नहीं देखा सीख लेता है। आपने देखा होगा मूवी तारे जमी पे, उसमें उस बच्चे में डायलेक्सिया की डिजीज था। तो ऐसा नहीं कि सारे बच्चे में होगा, लेकिन हर एक बच्चे का लर्निंग पैटर्न डिफरेंट होता है। तो हमें ये मानना देखना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, बच्चों को समझना चाहिए कि उनका क्या लर्निंग पैटर्न है। क्या वो विजुअल लर्नर है, या सुन करके वो सीख सकते हैं, ऑडियोटरी है, या रीडिंग एंड राइटिंग है, या काइनेस्थेटिक है कि अगर आप लिख करके और पढ़ करके समझते हो तो आप रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर हो। अब उस काम को कर करके सीखते हो, जो कि हर एक चीज में पॉसिबल नहीं है, तो आप काइनेस्थेटिक हो। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि बच्चों की क्वालिटी जो है किस तरह की है, किस तरीके से वो बच्चे सीख पाएंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी चाइल्ड साइकोलॉजी जानना हमें बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बच्चे आजकल है ना कि अगर होमवर्क नहीं बना रहे तो 2 क्वेश्चन आपसे करेंगे या कुछ और बात आपको चाहेंगे। बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है, उनका लीडर आपको चाहेगा कि कुछ और बोल दे और आप उसी बात में इन्वॉल्व हो जाए और पढ़ाई ना हो। पढ़ाई होगा नहीं, होमवर्क चेक होगा नहीं। तो आजकल के बच्चे ज्यादा स्मार्ट हैं, तो हमें चाइल्ड साइकोलॉजी जानना होगा, ये समझना होगा कि बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। और इसीलिए शिक्षा स्वयं पे अभी साइकोलॉजी का सेशन भी आ रहा है। कोविनेंट मैनेजमेंट 2 तरीके से ये होता है। ये एक माइक्रो सिस्टम होता है। लेवल इंक्लूड्स coordinating both with the classroom as a group and the individual student. The meso system level, which includes coordinating with the home. तो एक तो ये है कि बच्चे जो कोवेनेंट सिस्टम में अगर माइक्रो सिस्टम है, तो वहां ये देखना है कि बच्चे जो है कि वो क्लासरूम में ग्रुप और इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ क्या बिहेवियर है। और दूसरा ये देखना है कि मेसो में हमें ये देखना है कि कैसे पेरेंट्स से प्रॉपर कनेक्ट हो पाए। अब इसके लिए पेरेंट्स से हम लोग क्या क्या बात करें। सबसे पहले हमें ये बताना होगा, कुछ भेजना होगा, सर्कुलर, डायरी, एल्मानक में नोट दे करके भेजना होगा। आप कोशिश कीजिए पेरेंट्स से मिलने का। अब जिन बच्चों में रेगुलर मिसबिहेव की बातें आ रही है, वहां पे आप ये देखें कि कांस्टेंट कम्युनिकेशन पेरेंट्स से करें, आइदर रिटन करें और ओरल करें। पेरेंट, जहां तक ये देखा गया है, आज के पेरेंट को कंप्लीट जानकारी नहीं होती है, बच्चे उन तक सही जानकारी पहुंचने नहीं देते। तो किस तरीके से वो सही जानकारी पहुंचाएं, ये भी हमारा काम हो सकता है। इट मे बी देयर कि हम एक अच्छा कॉन्फ्रेंसिंग कर ले, कॉल कर ले, जूम मीटिंग कर ले। जब हम पेरेंट्स से मिले, भाई अब ये समझना है कि हमें तो पेरेंट के संग अच्छे से ही बिहेव करना चाहिए। पेरेंट ही कहीं ना कहीं से स्कूल पेरेंट पे डिपेंड होता है। तो बीइंग एज अ टीचर हमें प्रॉपर प्लीजेंट मैनर में थी पेरेंट से मिले हम लोग, जो भी हो सके सुने उनकी बातों को, जिस हद तक सुने। नॉर्मली पेरेंट्स से हम अभी अभी नॉर्मली पेरेंट्स से अब किस सिचुएशन में मिलते हैं, आप टीचर हैं, सभी को पता हो। जितना हो सके हम शांत रहें,
प्रोफेशनल मैनर में मिले, और कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम में हम पेरेंट को इन्वॉल्व करें कि कैसे पेरेंट और स्कूल और टीचर मिलकर के आउटपुट बेहतर कर सकते हैं, बच्चों को सुधार सकते हैं। पीटीएम में ये भी देखा गया कि कुछ पेरेंट आते हैं तो उनके से कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता है, तो वहां हमें टाइम सेट करके चलना चाहिए। जितना पॉसिबल हो एम्फेसाइज डेटा दीजिए उनको, हर बात की जानकारी जितना हो रिलेवेंट टॉक कीजिए, और ये बताइए कि पेरेंट को अगर आपसे कोई प्रॉब्लम, बच्चों से प्रॉब्लम है और वो सॉल्यूशन आपसे ढूंढ रहे हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, अगर आपको जानकारी है तो जरूर बतानी चाहिए। The most important thing dealing with misbehavior, normally middle school and +2, जब आप मिसबिहेवियर को डील कर रहे हैं, जितना हो सके प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करें। ये ना सोचे कि आज का जनरेशन डांट दे और शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं। मिसबिहेवियर का क्या कारण है, क्या चीज है। अब बच्चे बड़े हैं तो कुछ ऐसी चीजें भी निकल आती हैं, तो अगर हम इग्नोर कर सकते हैं वो इग्नोर करके निकले कहीं ना कहीं। उनको हम अगर समझाएं, नॉर्मली ये देखा गया है कि मिसबिहेवियर है, बच्चे पनिश किए जाते हैं इन क्लास, बेहतर उनको कहीं अकेले आप क्लास से बाहर निकाल करके तब समझाएं, उन्हें अच्छा लगेगा, वो समझेंगे आपकी बात को। इंसल्ट करके बच्चे को आप समझेंगे कि आपने उस चीज को कंट्रोल करा है, तो आप कहीं ना कहीं और बढ़ावा दे रहे हैं, वो कंट्रोल होने वाला चीज नहीं है जो मिसबिहेवियर होता है। तो ये हमें देखना होगा कि मिसबिहेवियर को हम हैंडल कैसे करें, किस तरीके से। कभी भी पेरेंट की बात, बहुत से लोग होते हैं कि जनरेशन की बात, उनके घर की बात, उनके फैमिली की बात, कहाँ से आते हो, खाना, ये सब कभी नहीं करना चाहिए, कभी 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 नहीं करना चाहिए। किसी तरीके से बच्चों को इमोशनल और पेरेंट्स से रिलेटेड बात ना करें, कोशिश करें कि उन्हें मोल्ड करें, उन्हें सिखाएं, समझाएं। हर मामले में ये आसान नहीं होता है, लेकिन कोशिश, प्रयास करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू डू दिस। अब ये भी हो सकता है कि मिसबिहेवियर में आने में उनके उनके पीछे क्या रीजन बना, तो अगर प्लानिंग, लेसन प्लान आपका चेंज करना है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप अपने कलीग को बताएं, अपने कोऑर्डिनेटर को बताएं, अपने सीनियर को बताएं, बीइंग एज अ टीचर मैं बोल रहा हूं। लेकिन कोशिश करें कि इन चीजों को बदला जाए, सुधारा जाए। कॉर्पोरल पनिशमेंट किसी भी तरीके से सीबीएसई स्कूल में मान्य नहीं है। वी शुड अवॉइड, सिंपली आई एम टेलिंग यू, वी शुड not try, this is not an option. We should forget the word corporal punishment. कहीं से दिमाग में corporal punishment आना ही नहीं चाहिए। बॉडी टच ये सब कहीं से नहीं है, किसी भी तरीके से किसी ग्रेड के बच्चे के संग ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अलग होता है, अगर जूनियर, बहुत जूनियर ग्रेड में जाए। जब आप अपने बच्चे को, स्टूडेंट को अच्छे से जानेंगे
तो मुझे लगता है कि वो मिसबिहेव नहीं करेंगे। तो कोशिश की, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द इंग्रेडिएंट इज कि आपको अपने बच्चों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब इतने देर में जो भी हुआ, हम लोग करेंगे क्या? अगर मैं क्लासरूम प्लान बनाऊं तो मैं कैसे करूंगा? तो बिहेवियर एक्सपेक्टेशन की, मैं जब क्लास में जाऊं तो बच्चों से मैंने क्या बिहेव किया और क्या एक्सपेक्टेशन मेरा है, उसी तरीके से बच्चों से मैं क्या एक्सपेक्ट करूं। तो जब आप जाते हैं क्लास में तो बिहेवियर एक्सपेक्टेशन रखें। आप ये भी करें कि कौन सा रूल सेट करना है, कैसा नियम होना चाहिए। फर्स्ट और सेकेंड डे नॉर्मली हम बताते हैं वे ऑफ कम्युनिकेटिंग रूल्स, किस तरीके से हम रूल बताएं कि बच्चे समझ जाएं। अब रूल बनाने में कहीं ना कहीं हमें स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। सीधे आप रूल बनाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है आज के टाइम में। तो क्या रूल आप बना रहे हो, उसमें बच्चों को भी शामिल करो। आप जो प्रोसीड्योर बना रहे हो उसका क्या आउटलाइन है, किस तरीके से। जब इन चीजों को आप लगाओगे, इन रूल को लगाओगे, तो कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी हो पाएगा। जब कहीं ना बच्चे निगेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, आपके बताने पे भी वो समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, तब क्या करें हम? उन्हें आप बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्या करेंगे आप, इसका परिणाम निगेटिव ही होगा। आप उनके अच्छा के लिए बताते हैं, आप अच्छाई के लिए बताते हैं, आप उनके ग्रोथ के लिए बोलते हैं, उनके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बोलते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि किस लेवल पे एक दो बार मिसबिहेव अगर होता, मिसबिहेव हैज डिफरेंट टाइप्स। प्लान फॉर कम्युनिकेटिंग विथ पेरेंट्स। ये भी देखना होगा कि आप स्टूडेंट के रूप में बच्चे जो हैं उनको लेसन में आप किस तरीके से एंगेज करते हैं। आपका होमवर्क देने का क्या पैटर्न है, किस तरीके से होमवर्क देते हैं, प्रॉपर नोट होता है कि नहीं, क्योंकि बच्चे तो कहते हैं कि मैं भूल गया। तो कहीं ना कहीं होमवर्क देना रिटन हो, ये सारा प्लान करके आप क्लासरूम मैनेजमेंट को कर बेहतर कर सकते हैं। सो अच्छा रहा सेशन। मैं चाहूंगा थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।